السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نارتھ زون پولیس کی جانب سے گوپال پورم پولیس اسٹیشن حدود کے مختلف علاقے جات میں کارڈون سرچ، مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ بھدرا بستی تکارام گیٹ میں واقع ایک مکان میں LPG سلنڈر دھماکہ، 16 سالہ لڑکا جل کر خاکستر، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ لڑکی تولد ہونے کے بعد سے شوہر کے ظلم و ستم کا شکار خاتون، میٹپلی پولیس سے رجوع، دوسری شادی کرنے کے باوجود مار پیٹ کا سلسلہ جاری۔ تلنگانہ حکومت عنقریب عالمی اردو کانفرنس کا اہتمام کرے گی۔ چومحلہ پیلس میں اردو اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ تقریب سے نائب رہا تلنگانہ محمد محمود علی نے کیا خطاب۔ یکم جنوری 2018 سے کسانوں کو 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے وزیر اعلیٰ KCR نے دی ہدایت، اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا جائزہ اجلاس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر اور مضافات میں شہریان کے تحفظ کو یقینی بنانے کی غرض سے سٹی پولیس کی جانب سے مختلف ڈویژنز میں کارڈن سرچ یعنی گھر گھر تلاشی مہم جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت نارتھ زون پولیس نے گوپال پورم پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے میں DCP نارتھ زون B سمتی IPS کی نگرانی میں تلاشی مہم چلائی، جس کے تحت پولیس نے لاجز کو نشانہ بنایا۔ مختلف لاجز میں تفصیلی طور پر تنقیح کی گئی، جملہ 72 لاجز میں چیکنگ کی گئی، جبکہ 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا اور 14 لاوارث وہیکلز کو بھی ضبط کیا گیا۔ تکارام بھدرا بستی میں پیش آئے ایک حادثے میں 16 سالہ لڑکا فوت ہو گیا اور اس کا جسم جل کر خاکستر ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بھدرا بستی میں واقع ایک مکان میں LPG سلنڈر بلاسٹ ہوا، جس کی زد میں آ کر 16 سالہ لڑکا دنیش
फौत हो गया। उसका जिस्म जलकर पूरी तरह से खाकस्तर हो गया। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को मुतल्ला किया। बादअज़ां धमाके के बाद के मलबे को हटाया गया। मुतल्लिका पुलिस ने झुलसी हुई नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। बोडोपल्ली में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में टीआरएस यूथ विंग लीडर की जानिब से अपनी बीवी को महज इसलिए मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ क्योंकि उसने पहली औलाद लड़की को जन्म दिया है। नेज़ टीआरएस यूथ विंग लीडर पी श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी पहली बीवी होते हुए दूसरी खातून से शादी की और उसे भी उसी मकान में रखा हुआ है। श्रीनिवास की पहली बीवी संगीता ने हिरासानी से तंग आकर मेटपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पैदा होने वाले नौमौलूद की जिन्स का दारोमदार मर्द पर होता है, जिसको साइंस ने साबित किया है। ताहम कई ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसके दौरान औरत को लड़की पैदा होने पर जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। एक ऐसे ही दिलसूज वाक़े में बोडुपल के साकिन टीआरएस यूथ विंग लीडर पी श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी अहलिया संगीता को लड़की तौल्लुद होने पर जिम्मेदार ठहराते हुए शदीद मारपीट की। तफसीलात के मुताबिक 4 साल पहले श्रीनिवास की शादी संगीता से हुई थी, जिन्हें 2 साल की लड़की भी है। लड़की तवल्लुद होने के बाद ही से श्रीनिवास का जुल्म जारी था और उसने अपनी हद पार करते हुए पहली बीवी संगीता को घर पर रखते हुए दूसरी खातून से शादी की और उसे भी यही मकान ले आया। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बैक वक्त कोई मर्द 2 शादियां या फिर 2 बीवियों को यकसा नहीं रख सकता। जब तक कि वो पहली बीवी को तलाक नहीं देता, दूसरी शादी कानूनी जुर्म मानी जाती है। ताहम श्रीनिवास की जानिब से दूसरी बीवी की मौजूदगी में संगीता को मारपीट जारी थी, जिससे तंग आकर संगीता ने मेटपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। లో పెళ్లి జరిగింది. నాకు పెళ్లికి ముందు ఆయనకి ముందు పెళ్లి అయిన సంగతి నాకు తెలియదు. పెళ్లి చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇంతకుముందు పెళ్లి అయింది, విడాకులు అయిన సంగతి నాకు తెలిసింది. నేను దాని గురించి పెద్ద మనుషులలో మాట్లాడితే తర్వాత సర్ది చెప్పిర్రు, పంపించిర్రు, ఓకే అయింది. మళ్ళీ నెల రోజుల నుంచి నాకు టార్చర్ పెట్టడం మొదలుపెట్టిండు. ఆయనకి ఇంతకుముందు వేరే అమ్మాయిలతో ఎఫైర్స్ ఉన్నాయి. ఆ గొడవల వల్లే ముందు అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిందని నాకు తర్వాత తెలిసింది. ఈయన కొట్టడం, టార్చర్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ ఉండడం వల్ల అమ్మాయికి ఇబ్బంది అయ్యి వెళ్ళిపోయింది. నాకు ఆ విషయం తెలియక నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్న నెల రోజుల నుంచే నాకు టార్చర్ పెడుతున్నారు. ఇటు మా అత్తనేమో వరకట్నం ఎక్కువ తేలేదని తక్కువ తెచ్చినవని మొదలుపెట్టింది. మా మామనేమో మాట్లాడాడు కానీ వాళ్ళకే సపోర్ట్ చేస్తాడు, నన్ను తిడతాడు అంతే తప్పితే వాళ్ళ తరపునే మాట్లాడతాడు కానీ అంతే. నాకు ఈ టార్చర్ని భరించలేక నేను పెద్ద మనుషులను తీసుకొని వస్తే ఎవరు నా ఇంటికి రావద్దని చెప్పి ఇంట్లో నుంచి ఎలగొట్టేసిండు. నా తరపున వాళ్ళు ఎవరు రావద్దని ఎలగొట్టారు. నన్ను ఇంట్లో ఉంచుతుండే, అంతేగాని ఒక కోడలి హోదా అయితే నాకు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు. ఒక పని మంచి హోదానే ఇచ్చారు. ఇంట్లో వాళ్ళకి చాకిరీ చేయడానికి మాత్రమే నేను కావాలి. నా భర్త ఎప్పుడు కూడా నన్ను మంచి చూసుకునేవాడు కాదు. నేనంటే ఇష్టం లేదు, నువ్వు నాకు నచ్చలేదు, నువ్వు వెళ్ళిపో, నువ్వు వద్దు అని చెప్పి ఎప్పుడు నన్ను రూమ్లో నుంచి గెంటేస్తూనే ఉండేవాడు. ఎన్నిసార్లు కాంప్రమైజ్ చేసినా కూడా ప్రతిసారి ఇదే మాట మాట్లాడతాడు. నాకు నా తమ్మునికి నాకు సంబంధం పెట్టిండు. ఈ పాప పుట్టినందుకు ఆ ఆడపిల్ల పుట్టిందనే దాంతో నన్ను ఇంట్లో నుంచి కొట్టి ఎలగొట్టేసిర్రు. ఇంకో అమ్మాయితో ఎఫైర్ పెట్టుకున్నాడు, అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع الاول کے آغاز کے موقع پر خون کا عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ درگاہ قادری چمن کے احاطے میں منعقدہ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کی سرپرستی مولانا سید شاہ حسن ابراہیم حسینی قادری نے کی، جبکہ مولانا اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا نے نگرانی کی۔ مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر مولانا حافظ مظفر حسین بندہ نوازی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ کیمپ سے جمع شدہ خون اسرا ہاسپٹل اور اویسی ہاسپٹل کو عطیہ دینے کی بات کہی گئی ہے۔ 19 نومبر 2017 بروز اتوار بمقام قادری چمن درگاہ شریف میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ الحمدللہ عشاق آ رہے ہیں اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شام 7 بجے تک چلتا رہے گا۔ تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جو حضرات نے صوفی کی اپیل پر ماشاءاللہ یہاں حاضر ہوئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز المستعان آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خون کس کو دیا جاتا ہے، کہ یہ خون دراصل ان لوگوں کو، ان مریضوں کو دیا جاتا ہے جو آپ کے خون کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں، بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ آج اپنے اپنے بستروں پر ہے، دواخانوں میں ہیں، جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، جن کی زندگی کا دار و مدار ہی خون بن چکا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈائلیسس میں مبتلا ہے، جن کی زندگی میں بغیر خون کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ویسے کئی قسم کے جو بڑے بڑے حادثوں کا شکار ہوتے ہیں، آپریشنز کا شکار ہوتے ہیں، یا ہارٹ کی سرجری ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو خون کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ آپ کا دیا ہوا خون ہی ان لوگوں کی زندگی کا سبب بنتا ہے۔ تو الحمدللہ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کا یہ 5واں سال ہے۔ آپ حضرات جو آ رہے ہیں، خون کا عطیہ دے رہے ہیں، یہ ایک خوش آئین کام ہے۔ الحمدللہ اس سال ہم نے اسرا ہاسپٹل اور اویسی ہاسپٹل کو خون دے رہے ہیں، اور ان سے ایک وعدہ لیے ہیں کہ سال بھر، جیسے 5 سال سے یہ وعدہ چلے آ رہا ہے اور وہ وعدے پر قائم ہے کہ 5 سال سے یہ وعدہ ہے کہ ہر سال ایک دن، سال میں ایک دن خون ہم دیں گے اور سال بھر خون آپ دیں گے۔ تو وہ بلڈ بینکس جو ہم کو سال بھر خون دیتے ہیں ضرورت مندوں کو، اسی سے اللہ کے بندوں کی خدمت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے اور محکمہ اقلیتی بہبود کے اشتراک سے چومحلہ پیلس واقع خلوت مبارک میں ایک رنگا رنگ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کی صدارت نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ محمد محمود علی نے کی، جبکہ ریاست بھر کے بیسٹ ٹیچرز اور بیسٹ اسٹوڈنٹس کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کی مناسبت سے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ محکمہ اقلیتی بہبود اور تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی جانب سے ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی 129ویں یوم پیدائش کے موقع پر ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد خلوت پیلس میں عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب کی نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ محمد محمود علی نے صدارت کی، جبکہ بیسٹ اردو ٹیچرز اور بیسٹ اردو اسٹوڈنٹس ایوارڈز کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ ڈائریکٹر سیکرٹری تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی پروفیسر ایس اے شکور اور سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ مشیر اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ اے کے خان کے علاوہ دیگر نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی۔ ریاست کے مختلف اضلاع سے جملہ 45 اساتذہ بشمول خوشنویس کو ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ اردو میڈیم کے جملہ 110 طلبہ بشمول 105 طالبات کو بیسٹ اسٹوڈنٹس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں گورنمنٹ پرائمری اسکول خواجہ نگر کی سیکنڈری گریڈ ٹیچر افس سلطانہ بھی شامل ہیں۔ معروف شاعر اسلم فرشوری نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ چومحلہ پیلس میں منعقدہ اس پروگرام میں شام غزل کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں جے پور کے معروف غزل سرا محمد وکیل اور ممبئی کی پرتیبھا سنگھ بھاگیل نے اپنی مسحور کن آواز میں سما باندھ دیا اور شائقین غزل کو محظوظ کیا۔ اس موقع پر اردودہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی، جبکہ انتظامات کی نگرانی معین خان سپروائزر اردو مسکن نے کی۔ خواجہ میرے خواجہ دل میں سما کر بے کسوں کی تقدیر
संवरी बेकसों की तकदीर, उन्हें है संवरी, उन्हें है संवरी ख्वाजा मेरे ख्वाजा। दिल में समा जा शाहों का शाह तू, अली का दुलारा। तेरे दरबार औलिया, तेरे दरबार में ख्वाजा नूर को है देखा। तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया। तू है जिंदल वली ख्वाजा, रुतबा है तेरा प्यारा। चाहने से तुमको ख्वाजा जी मुस्तफा को चाहा। उर्दू ज़बान यहाँ पैदा हुई, दिल्ली में बड़ी हुई और लखनऊ में उन्होंने उर्दू ज़बान बहुत तरक्की। और 1956 को हमारी स्टेट को आंध्रा में मिला गया तो सबसे पहले हमारी ज़बान पे अटैक किया गया, उर्दू ज़बान ख़त्म की गई। आहिस्ता आहिस्ता एक ज़माना पहले यहाँ के हमारे हिंदू भाई भी उर्दू ज़बान में अखबार पढ़ते थे, बात करते थे और उर्दू ज़बान में तालीम हासिल कर चुके थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने वही निज़ाम स्टेट जिसकी आप आज यहाँ उसकी रौनक देख रहे हैं, मैं प्रिंसेस असरा को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कम से कम इस गलत पैलेस को तो बचा लिया। ये आंध्रा वाले ना हमारी कल्चर जानते थे, ना हमारी तहजीब जानते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू ज़बान के साथ हमारे साथ भी नाइंसाफी करते हैं। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई। उसका एक ही मकसद था, तेलंगाना हासिल करना, क्योंकि तेलंगाना के अवाम के साथ जो नाइंसाफी होती थी, अगर उसकी मिसाल आपको पेश की जाएगी तो आप भी ताज्जुब करेंगे। आज हमारा जो बजट वेलफेयर पर खर्चा किया जाता है वो 40,000 करोड़ का बजट है, और जब हमारा आंध्र प्रदेश में हमको जो बजट मिला करता था वो 38-39,000, कभी कभी 40,000 करोड़ के हमेशा नीचे रहा है। आज 40,000 करोड़ तो सिर्फ वेलफेयर पर खर्चा किया जाता है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब बहुत महान इंसान है। मैं समझता हूँ ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। हमारे ऑनरेबल सीएम ने निजाम का, जिस तरह निजाम को लोग याद करते हैं, महबूब अली पाशा को याद करते हैं, उस्मान अली पाशा को याद करते हैं, हिंदू मुस्लिम को दुआ की तरह देखा करते थे, और हमारे सीएम की खुसूसियत ये सभी को एक आग की तरह देखते हैं। वो सबसे पहले ये हमेशा ये कहा करे, जो कौम आज से 70 साल पहले 300 साल तक मुस्तकिल हुकूमत की, 70 साल में ऐसा क्या होगा, वो दलितों से भी बैकवर्ड हो चुके हैं। ये सीएम साहब नहीं कह रहे, सच्चार साहब की रिपोर्ट बताती है, सुधीर कमेटी रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं। और सुबह मुझे भी एक आती है, एक कुछ लोगों ने मुझे दावत की शहर हैदराबाद में, तो उन लोगों ने कहा कि आप दोपहर में तशरीफ लाए, शाम में मुनज़्ज़म बिज़ी था, तो मैंने कहा शाम में नहीं आ सकता। तो मुझे मैं कहा कि मैं एक मस्जिद पे आ जाता हूँ जोहर के साथ, आप आ जाइए, आपके साथ चलेंगे। मैं जब एमएलसी था, मिनिस्टर नहीं बना था, जब मैं दोपहर में गया जोहर की नमाज में तो कोई बुलाने वाला मुझे नजर नहीं आया। जब नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फिरने के बाद जब सुन्नत नमाज पढ़ा तो वहाँ 4-5 लोग नजर आए। हम हमेशा 3-4 बजे उठते, आप आने की वजह से आपको वुज़ू किए थे, इसलिए हम जल्दी उठते। तो मैं यही कहता हूँ इस बंदे में कि हम वक्त की कदर करें, सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के साथ अपने काम काज शुरू करें। ये हुकूमत आपकी है, मुस्लिम भाइयों की हुकूमत है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा वसीया नसीब फरमाया, शायद वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमारे सीएम साहब बहुत काम करते हैं और सभी कौम की तरक्की चाहते हैं। ऐसे ऐसे इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं, खास तौर से आज तक कभी भी कोई चीफ मिनिस्टर के पास कोई मुस्लिम एडवाइजर नहीं था। उन्होंने एक खान साहब को अपना एडवाइजर मुकर्रर किया। आप देखिए हिंदुस्तान में इतने स्टेट है जहाँ की आबादी 30%, 25%, 28%, 35%, 40% तक बंगाल में मुसलमान, वहाँ 50 एमएलए से ज्यादा मुसलमान है, पर कहीं पर भी मुसलमान 30% नहीं। आपके भाई को, क्योंकि आप
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बरखी के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए बरखी के आला ओहदेदारों से तफसीली तौर पर बातचीत की, जिसके बाद बरखी के आला ओहदेदार प्रभाकर ने वज़ीर आला को बताया कि किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने का आजमाइशी मरहला काफ़ी कामयाब रहा, जिस पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 1 जनवरी 2018 से रियासत के तमाम किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने का ऐलान किया है। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर बरखी के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें महकमे बरखी के आला अहदेदार प्रभाकर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को वाकिफ करवाया कि किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने के लिए जारी माह 5 दिन तक जो आजमाइशी अमल किया गया वो मरहला निहायत ही कामयाब रहा, जिस पर वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 1 जनवरी 2018 से रियासत के तमाम किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने का ऐलान किया। वज़ीर आला के सीआर ने हफ्ते को SC/ST किसानों के बरखी बकायाजात माफ़ करने का भी ऐलान किया था। तेलंगाना बीजेपी तर्जुमान रघुनंद राव ने तेलंगाना की TRS हुकूमत की जानिब से सरकारी अराजियात पर की गई रजिस्ट्री को बगैर किसी नोटिस के मनसूख करने के तरीक़ेकार को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम से जनरल सेक्रेटरी TRS केशव राव जैसे कायदीन और दीगर कायदीन का ही फ़ायदा हो सकता है। बीजेपी के तेलंगाना यूनिट तर्जुमान रघुनंद राव ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की TRS हुकूमत की जानिब से सरकारी अराजियात पर की गई रजिस्ट्री को बगैर किसी नोटिस के मनसूख करने के तरीक़ेकार को गलत करार दिया और बताया कि इस तरह के इक़दामात से जनरल सेक्रेटरी TRS केशव राव जैसे कायदीन और दीगर का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है कि किसी भी रजिस्ट्री को मनसूख करने से क़ब्ल इसे नोटिस देनी चाहिए। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने BC तबक़ात को खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी BC तबक़े को तेलंगाना में इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेगी और BC तबक़े के साथ तमाम तबक़ात को हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुस्तफ़िद करने के लिए हुकूमत पर दबाव पैदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि BC तबक़े को भी कल्याणी लक्ष्मी स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर लक्ष्मण ने BC तबक़ात को मुखातिब करते हुए बताया कि बीजेपी BC तबक़े को तेलंगाना में इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद करेगी और SC तबक़े के तमाम तबक़ात को हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुस्तफ़ीद करने के लिए हुकूमत पर दबाव पैदा करेगी और बताया कि SC तबक़ात के ज़ेर जो तबक़ात आते हैं उनकी भलाई के लिए भी काम किया जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि BC तबक़े को भी कल्याणी लक्ष्मी स्कीम में शामिल करना चाहिए। फिलहाल SC/ST तबक़े को कल्याणी लक्ष्मी के तहत और अक़लियतों को शादी मुबारक के तहत लड़कियों की शादी के लिए 75,000 रुपये मंजूर किए जा रहे हैं। इस तरह BC तबक़े की लड़कियों को भी इसमें शामिल करना नागुज़ीर है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की क़यादत को खिराज पेश किया और कहा कि मुल्क भर में इंदिरा गांधी वो वाहिद खातून थी जिन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए कई एक बेहतर इक़दामात करते हुए दुनिया भर में अपने नाम का लोहा मनवाया था। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से मुखातिब होते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद इंदिरा गांधी की क़यादत को खिराज पेश किया और बताया कि मुल्क भर में इंदिरा गांधी वो वाहिद खातून कायद थी जिन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए कई एक इक़दामात किए और दुनिया भर में अपने नाम का लोहा मनवाया और बताया कि इंदिरा गांधी मुल्क की अक़लियतों SC/ST BC तबक़ात के फ़लाह बहबूद के लिए कई स्कीमात का आगाज़ कर चुकी हैं और तेलुगु रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आवाम से उन्हें काफ़ी मोहब्बत थी और उन्होंने यहाँ से इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। రోజు మొదలుపెట్టుకొని ఈ రోజుతోని ఈ ఉత్సవాలని ముగించుకుంటున్నాం। మరి ఇందిరాగాంధీ గారు భారతదేశంలో ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంత మహిళా నాయకురాలు ఒకరు। ప్రత్యేకంగా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ గురించి మాట్లాడుకుంటే షీ ఈజ్ ప్రాబబ్లీ ద మోస్ట్ పాపులర్ లీడర్
ever in Andhra Pradesh and Telangana. నిజంగా తెలంగాణ ఆంధ్రాలో దళితుల్లో గిరిజనుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం నింపింది ఇందిరాగాంధీ గారి పథకాలు, వారి ప్రణాళిక. మీరు ఏ మారుమూల ప్రాంతంలో పోయినా ఇందిరమ్మ అని ఎంతో ఆప్యాయతతో గుర్తు తెచ్చుకుంటారు. साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कांग्रेस कमेटियों की जानिब से तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए कौमी परचम लहराया गया और इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं पेश की गईं। उनकी खिदमात को खिराज पेश करते के मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया गया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हिंद इंदिरा गांधी की 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कांग्रेस कमेटियों की जानिब से तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, आंध्र प्रदेश रुकन राज्यसभा रामचंद्र राव, अपोजिशन कायद कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर भी इस तकरीब में मौजूद थे। इन कायदीन ने इंदिरा गांधी की फ़ोटो पर फूल माला पेश करते हुए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। गांधी भवन और इंदिरा भवन में मुश्तरका तौर पर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और केक काटा गया। आपस में कांग्रेस कायदीन ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी एहतमाम किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ वज़रा डी नागेंद्र, पी लक्ष्मैया, साबिक़ रुकन पार्लिमान अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दमाम सऊदी अरब में तलबा और तालिबात की जानिब से साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें अपर प्राइमरी बॉयज़ सेक्शन और मिडिल सेक्शन के तकरीबन 1500 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस साइंसी नुमाइश को एडवेक्स 2017 का नाम दिया गया था। असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेन एजुकेशन हुसैन मकबूल ने साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर बदर राबिया ग्रुप हॉस्पिटल्स अहमद पोलिकल ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की। चेयरमैन इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दमाम डॉक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद शाफी ने खैर मकदमी तकरीर की। हेडमास्टर मोहम्मद इस्माइल ने इंतजामात की निगरानी की, जबकि तलबा ने 500 से ज़्यादा नमूने पेश किए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल माह रबीउल अव्वल में 11 और 12 रबीउल अव्वल को जलसे रहमतुल्लिल आलमीन और नातिया मुशायरे का एहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले के तहत तश्कील दी गई इस्तेक़बालिया कमेटी का एक अहम इजलास मजलिसी हेड क्वार्टर दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इंतज़ामात के सिलसिले में गौर व खौस किया गया। बाद-अज़ां मोतमद अमूमी रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मीडिया को तफसीलात बताईं। ऐवान असम्बली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर अक़लियतों की भलाई के लिए वज़ीर आला ने कई एक ऐलानात किए और उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत से भी तमाम अज़ला में तस्लीम किया गया है। इस सिलसिले के तहत अंबरपेट डिवीज़न से मजलिसी वफ़द ने दारुस्सलाम पहुँच कर मजलिसी कायदीन को तहनीत पेश की। इस मौके पर मोतमद अमूमी रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी और रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हरबस्तर कॉलोनी जगतगीर गुट्टा में पेश आए एक वाक़े में एक शख्स को उसकी 2 बीवियों ने चुनरी की मदद से गला घोंटा और बाद में उसकी नाश को आग की नज़र कर दिया। जगतगीर गुट्टा पुलिस के मुताबिक शौहर की हिरासनी से तंग आकर दोनों बीवियों ने मनसूबाबंद तरीके से ये काम अंजाम दिया। जगतगीर गुट्टा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کی اراکین عاملہ و مدعوین کا خصوصی اجلاس دفتر ریاستی جمعیت العلماء منعقد ہوا۔ صدر جمعیت العلماء تلنگانہ اور آندھرا پردیش حافظ پیر شبیر احمد نے بتایا کہ اجلاس میں متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ لیا گیا کہ دونوں ریاستوں کے تمام اضلاع میں امن ایکتا سمیلن کا اہتمام کیا جائے، نیز ایک اجلاس عام آندھرا پردیش میں بھی منعقد کیا جائے۔ علاوہ ازیں دینی تعلیمی بورڈ کا اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا۔ جن جن نئے ضلع بنے ہیں وہاں پر بھی جمعیت کے عہدیداروں کا انتخاب کیا جائے گا، جو 25 دسمبر تک اس کی تکمیل کی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اجلاس عام جو ہمارا ہر سال ہوتا ہے ریاست کی جانب سے، جو 2012 میں ہوا تھا نظام کالج گراؤنڈ کے اندر، لاکھوں کا مجمع آیا تھا، اور انشاءاللہ اب کے بار ارادہ ہو رہا کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہمارے آل انڈیا پریزیڈنٹ اور مولانا محمود مدنی صاحب کی تاریخ لے کر انشاءاللہ ہم نظام کالج گراؤنڈ میں اجلاس عام، ریاستی اجلاس عام کریں گے، اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان علماء آئیں گے اور عوام آئیں گے جو جمعیت کے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ہم جو ہے اس وقت ہر ضلع کے اندر جو ہے ایک چیز جو ہے امن ایکتا سمیلن منعقد کریں گے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ اضلاع کے اندر امن ایکتا سمیلن کریں گے، جس میں غیر مسلموں کو شریک کی جائیں گی، اور خصوصاً بچھڑے ہوئے جو ابنائے وطن ہیں ان کو شریک کر کے جو ہے وہ جلسے کرنے کا بھی ہم نے پروگرام کیا ہے، اور یہ بھی ہم جو ہے جنوری یا فروری کے آخر تک یہ کام کریں گے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہر سال جو ہمارا شروع سے رہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلسے کرنے کا ہے، وہ انشاءاللہ یہ مرتبہ ربیع الاول میں بھی ہم پورے ڈسٹرکوں میں اور شہر میں بھی اعلیٰ پیمانے پہ ہم کریں گے۔ سیرت کوئز کا مسئلہ ہے، جو مختلف زبانوں میں ہم نے سیرت کوئز رکھا ہے، اور ہر ضلع کے اندر ہندو اور مسلمان بچیاں شریک ہوتے ہیں، اور اسکولوں کے ہوتی ہے، مدرسے کے نہیں، وہ امتحان دیتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کے انعامات دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی جو ہے نا امن اور جو ہے نا جو پیغام ہے امن کا، اس پیغام کو پھیلانے کے سلسلے میں سوال جواب کی شکل میں ہم کتابیں تقسیم کرتے ہیں، اسی کا امتحان لیتے ہیں، اور اس میں اکثریت ہندوؤں کی بھی ہوتی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نارزون پولیس کی جانب سے گوپال پورم پولیس اسٹیشن حدود کے مختلف علاقے جات میں کارڈون سرچ، مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ بھدرا بستی تکارام گیٹ میں واقع ایک مکان میں LPG سلنڈر دھماکہ، 16 سالہ لڑکا جل کر خاکستر، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ لڑکی تولد ہونے کے بعد سے شوہر کے ظلم و ستم کا شکار خاتون، میڈپلی پولیس سے رجوع، دوسری شادی کرنے کے باوجود مار پیٹ کا سلسلہ جاری۔ تلنگانہ حکومت عنقریب عالمی اردو کانفرنس کا اہتمام کرے گی۔ چومحلہ پیلس میں اردو اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ تقریب سے نائب رہا تلنگانہ محمد محمود علی نے کیا خطاب۔ یکم جنوری 2018 سے کسانوں کو 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے وزیر اعلیٰ KCR نے دی ہدایت، اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا جائزہ اجلاس۔
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।